Hello everyone. So in the last class we completed the degeneracy of Fermi gas. Now today we'll start with the another topic which is the electron gas in metals. Now this is also a very important topic from your examinations point of view. Now what is electron gas in metals? हमारे पास जो metals होते हैं या metallic conductor होते हैं वो कैसे होते हैं? It is composed of a large number of free electrons and fixed positive nuclei as well. तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर मूविंग फ्रीली in the metal, we can say that they are behaving like the particles of a gas. How? Because a metal जो है it can be considered to be composed of a system of fixed positive nuclei and a number of mobile electrons or the free electrons. Now these mobile electrons, they are assumed to move freely in the metal like the particles of a gas and collide continuously with fixed nuclei. तो हम ये चीज बोल सकते हैं ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं inside this metal, they are actually behaving like the particles of a gas. So we can say that they are forming some sort of a gas. So let's say they are forming an electron gas. ठीक है? इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग फ्रीली लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एंड कोलाइडिंग कंटिन्यूअसली विद द फिक्स्ड पॉजिटिव न्यूक्लियाई. ठीक है, तो जब इस चीज को कंसीडर किया गया कि जो हमारे मेटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल्स दे आर नॉट बिहेविंग लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एंड फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन गैस. तो उसको जब सॉल्व किया गया या स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो क्या देखा गया कि most of the properties like electrical and thermal conductivities, the thermoelectricity, thermionic emission, magnetic properties of metals, so on. These some of the properties जो हैं, they were explained to a certain extent with the help of classical statistics. ठीक है, but क्या हुआ in certain cases like specific heat of metals, various serious difficulties were encountered in the use of classical statistics. इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गैस को कंसीडर किया गया like the gas consisting of large number of free particles that are colliding with the walls of the container. यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस है इसको भी उसी तरीके से कंसीडर किया. Here the electrons जो है they are moving freely and colliding continuously with the fixed positive nuclei. तो जब इस इलेक्ट्रॉन गैस को स्टडी किया with the help of classical statistics, तो देखा मेटल्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स लाइक द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स. तो 1928 में साइंटिस्ट था समरफील्ड, उसने क्या किया, रिवाइज करी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. उसने ये बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द मेटल्स, हम ये नहीं कह सकते कि दे आर कंप्लीटली फ्री, they are partially free. Why partially free? In the sense that they are not bound to a particular atomic system. किसी particular atomic system से bound नहीं है, so we can say that they are free, but they are bound to the metal as a whole. Electrons जो हैं they are moving inside the metal only, they are bound to the metal, so we cannot say they are completely free, we can say that they are partially free. Moreover, जो उसने एक चीज बोली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन. हाफ इंटीग्रल स्पिन का मतलब है दे आर ओबेइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो दैट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर फर्मियंस. So in order to study the behavior of these electrons inside the metal, we should apply the quantum statistics, which is the Fermi-Dirac statistics, instead of classical statistics, because these electrons are fermions, so they are Fermi particles, so they should obey the Fermi-Dirac statistics. ठीक है,
तो ये चीज समरफील्ड ने बताई थी 1928 कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इन द मेटेलिक कंडक्टर्स दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द फ्री पार्टिकल्स ऑफ अ गैस ओबेइंग द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। हम जो है मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वी कैन से दैट दे आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन गैस like they are moving freely like the particles of a gas and colliding continuously with the fixed nuclei. We should also consider this thing that ये जो हमारे electrons हैं they are having half integral spin, they are fermions. So instead of obeying the classical statistics they should obey the Fermi-Dirac statistics. So the electrons in the metallic conductors cannot be compared with the free particles of a gas obeying the Maxwell-Boltzmann or the classical statistics. ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन गैस को, स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन गैस को by applying the Fermi-Dirac statistics. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स where we are applying the Fermi-Dirac statistics to study the behavior of electrons inside the metal or to study the different properties of metals. तो यहाँ पर भी जो है सबसे पहले हम try करेंगे to study the properties of electron gas at low temperatures. Low temperatures means in the region where T tends to 0. And S जो है हमारा for electrons it is half. S हमारा क्या है, this is the spin angular momentum, for electrons it is half. So what will be our degeneracy factor GS? That will be equal to 2S plus 1 which is equal to 2 because S हमारा क्या है, S is half. ठीक है, आई होप ये सबको पता है कि हमने ये चीज कैसे निकाली है. GS जो है हमने ऑलरेडी जो है पहले इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और हमने वहां पर ये चीज बताई थी कि GS जो है हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डीजेनरेसी फैक्टर और यू कैन से दैट द स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर. ठीक है, and that is equal to 2s plus 1 and for electrons we know that they are having half integral spin so S is half so GS will be equal to 2. तो हमने जो पहली इक्वेशंस लिखी थी NU DU की इन सब की उसमें now we can substitute the value of GS as 2. So now we'll try to study this electron gas at low temperatures in the that means in the region T tends to 0. आई होप जो मैंने पहले पैराग्राफ बताया वो सबको क्लियर है. उसमें बस इतना बताया कि अगर हम जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनसाइड द मेटल्स उनको हम कंसीडर करें लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस ओबेइंग मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो उस केस में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को तो एक्सप्लेन कर पाते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट कुछ प्रॉपर्टीज को हम बिल्कुल ही एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं. तो ये चीज बाद में बताई गई बाय द साइंटिस्ट समरफील्ड कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं inside this metal they cannot be compared with the free particles of a gas. Why? Because these electrons they are not completely free, they are partially free. Moreover they are having half integral spin, they obey Pauli's exclusion principle, so they are fermions, they are Fermi particles, so they should obey the Fermi-Dirac statistics. तो अभी तक हम देख चुके हैं what is a Fermi-Dirac distribution law और हमने इन डिटेल भी पढ़ लिया द डीजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस. इसका मतलब अब हमें इलेक्ट्रॉन गैस जो है उसको पढ़ने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी. Here the Fermi gas is the electron gas. So now what will be the equation number 4.39? इक्वेशन नंबर 4.39 क्या थी हमारी, देखो वो हमारी ये वाली इक्वेशन थी. ठीक है, ये अगर तुम लोगों को याद हो ये हम डेरिवेशन जब कर रहे थे फर्मी गैस का तो वहां पे हमने जो है ये चीज देखी थी. इक्वेशन नंबर 39 हमने इसको डिराइव किया था विच इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो एट T इक्वल टू 0 केल्विन. ये हमने डिराइव किया था इन द टॉपिक फर्मी डिराक गैस जब हमने पहले पढ़ा था. नाउ वी आर डायरेक्टली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. तो UF0 हमारा क्या है, h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 3n अपॉन 4 पाई v GS raised to power 2 upon 3. Now what is this? This is representing the Fermi energy at T equal to 0 Kelvin or the Fermi energy at absolute 0. Now we have substituted the value of GS as 2 over here. ठीक है, अब जो है हम यहाँ से ट्राई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन गैस. कैसे, हमारी जो इलेक्ट्रॉन गैस है ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल. ठीक है, और जो हमारी
मेटल्स हैं, फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, जो हमारी डेंसिटी थी that is 0.1 kilogram per meter cube. This is representing the density of the electron gas. ठीक है, और you can say that the density of the conduction electrons inside the metal, this is equal to 0.1 kilogram per meter cube. अगर मैं एक बार ना तुम्हें ये टॉपिक दिखा देती हूँ. When we were doing Fermi Dirac gas, वहां पे हमने एक्सप्रेशन डिराइव करी थी. ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोगों को याद हो, हमने ये दो एक्सप्रेशंस लिखी थी. Fermi energy at absolute zero is equal to this for electrons is equal to this for protons, और ये हमने कैलकुलेशन करी थी for rho is equal to 0.1 kilogram per meter cube. This is representing the density of electron gas. ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस डेंसिटी है वो हमारी ये है. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ UF0. एंड व्हाट इज रो? रो इज mn अपॉन v. तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले सबसे पहले UF0 जो है उसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रो. कैसे लिखेंगे? डिट्टो जैसे हमने पहले किया था, ये वही चीज यहाँ पर इतना पोर्शन जो है कंप्लीटली रिपीटेटिव है. यहाँ पर अगर मैं m से सबसे पहले ये करो h स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में वी हैव 3n अपॉन 4 पाई v इंटू 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 3. तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में वी हैव 8 रेज टू पावर 2 अपॉन 3, 4 इंटू 2. ठीक है, व्हाट इज 8 रेज टू पावर 2 अपॉन 3? 8 को वी कैन राइट एज 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो दिस बिकम्स 2 raised to power 3 into 2 upon 3, which is 2 square, and 2 square is nothing but 4. So we can take this 4 into 2 raised to power 2 upon 3 out of this square bracket, and we can write 4. So 2 into 4 becomes 8. So we have h square upon 8m into 3n upon, ये फैक्टर बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में, पाई वी रेज टू पावर 2 अपॉन 3. नाउ वी विल ट्राई टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस. सो फॉर दिस वी विल मल्टीप्लाई बाय m both in the numerator and denominator inside this bracket. तो हमने m से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और यू कैन से दैट हमने m से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी. ठीक है, तो इसको अब हमने लिख दिया 3nm अपॉन पाई इंटू v, और ये जो डिनोमिनेटर में m रेज टू पावर 2 अपॉन 3 था इसको हम बाहर ले गए. यहाँ ऑलरेडी एक m प्रेजेंट है तो ये हो गया m रेज टू पावर 5 अपॉन 3, और ब्रैकेट में हमारे पास आया 3nm अपॉन पाई इंटू v. Now what is this mn upon v? This is nothing but representing the density of the gas. So we can replace it by rho. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, that you can see that lecture as well. ये हमने किया था when we were doing the Fermi Dirac gas. Now अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या हो गई? h स्क्वायर अपॉन 8m रेज टू पावर 5 अपॉन 3 इंटू 3 रो upon pi raised to power 2 upon 3. Now, what will be h? We know the value of Planck's constant h, 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. We know the mass of electron, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. We know the value of pi, 22 upon 7 or 3.14. Substitute all the values, you will get this. इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी ये फर्मी एनर्जी है दिस इज इन जूल्स. इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं. हाउ? we know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules. So 1 joule will be equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 electron volt. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करूं बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19, what will I get? I'll get the Fermi energy at absolute zero in electron volts. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे by 1.6 into 10 raised to power minus 19, what we'll get? We'll get 39 into rho raised to power 2 upon 3 electron volt. So this is representing the final expression of Fermi energy at absolute zero in electron volt in terms of density of the gas.
Now, if I'll substitute rho is equal to 0.1 kilogram per meter cube, which is this is for conduction electrons in metals. यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि we are considering कौन सा system consider कर रहे हैं, we are considering electron gas. That means we are considering a system in which we have a metal. ठीक है, in the metal we have a large number of free electrons. What are these free electrons? These free electrons are responsible for conduction. तो इन free electrons को हम conduction electrons भी कहते हैं, और इसकी density जो है हमें पता है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे हम वही सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. So we can use this value of rho in this expression. So if I'll substitute this value of rho over here, we'll get the value of Fermi energy at absolute zero. तो यहाँ हमें फर्मी एनर्जी मिल गई. इफ वी नो द फर्मी एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द फर्मी टेम्परेचर फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस. हमें इलेक्ट्रॉन गैस को स्टडी करना है कि व्हाट हैपेंस एट लो टेम्परेचर्स, व्हाट हैपेंस एट हाई टेम्परेचर. सो फॉर दिस फर्स्ट वी शुड नो द फर्मी टेम्परेचर फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस. ठीक है, हमें पता है अगर जो टेम्परेचर है इफ इट इज ग्रेटर देन फर्मी टेम्परेचर, उस केस में जो हमारी गैस होती है इट इज वीकली और स्लाइटली डीजेनरेट. अगर टेम्परेचर जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन फर्मी टेम्परेचर, in that case we have a strong degeneracy. ठीक है, so we should know what is this TF, what is the value of TF. So if we know UF0, we know TF is equal to UF0 upon K. ठीक है, हमारा K क्या है, K is representing the Boltzmann constant. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी ये हमारी UF0 थी. इसको जब हम डिवाइड कर देंगे, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्मी टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, इस एक्सप्रेशन के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि हम इसको डिवाइड करेंगे विद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 into 10 raised to power minus 23, वो जूल्स पर केल्विन में है. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो UF0 है वो जूल्स में है, तो जूल से जूल कैंसिल आउट होगा और हमारे पास क्या बचेगा, वील गेट केल्विन, वील गेट द टेम्परेचर इन केल्विन. तो हमारे पास जो TF आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4.52 into 10 raised to power 5 into rho raised to power 2 upon 3 Kelvin. Rho की वैल्यू हमारी क्या है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Now if I substitute the value of rho in this equation, I'll get the Fermi temperature for the electron gas which comes out to be 10 raised to power 5 Kelvin. ठीक है, so what is the Fermi temperature for the electron gas? It is 10 raised to power 5 Kelvin. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने ये टेम्परेचर कैसे निकाला. सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन यूज करी फर्मी एनर्जी की एट एब्सोल्यूट जीरो, जनरल एक्सप्रेशन हमने यूज करी. ठीक है, और हमें पता है फर्मी टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू UF0 अपॉन K. तो अब K जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज नोन टू अस. तो अगर हमें UF0 मिल गया देन वी कैन गेट TF. फिर हमने UF0 जो है उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ रो, द डेंसिटी ऑफ द gas. And for the conduction electrons in metals, we know that rho is 0.1 kilogram per meter cube. So now we know UF0. If we know UF0, we know the value of K. We can calculate the value of Fermi temperature, and we have seen that for this value of rho, our Fermi temperature comes out to be 10 raised to power 5 Kelvin. So from this we can conclude that जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस है below this temperature it is degenerate. और अगर temperature जो है हमारा it is very very less than TF, then in that case our electron gas is strongly degenerate. And for the intermediate temperatures like T is greater than or nearly equal to TF, in that case we can have weak or slight degeneracy. So now we'll study the degeneracy of the electron gas. So for this first we should know the gas degeneracy factor. हमें already पता है D हमारा क्या होता है, this is equal to 1 upon GS into N upon V into H cube upon 2m pi KT raised to power 3 upon 2. ये equation जो है हम बहुत बार use कर चुके हैं. 4.49 से मैं एक बार तुम लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ.
आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमने ये एक्सप्रेशन लिखी थी गैस डिजेनरेसी फैक्टर की, ठीक है, दिस वन। अब हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। GS हमारा क्या है हियर, GS is 2, तो सब्स्टिट्यूट GS as 2 फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव सीन दैट, जो हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जो हमारा ये गैस डिजेनरेसी फैक्टर है कैपिटल T कैपिटल D, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T. So as T tends to 0, that means जब हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, then T is tending to absolute 0, then in that case जो हमारा कैपिटल D है it is tending to infinity. तो हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ट्राई करेंगे to find the 0 point energy, that means the energy at absolute 0, ठीक है। We'll try to find the 0 point pressure, that means the pressure at absolute 0. We'll also try to find the average speed of electron at absolute 0. तो यहाँ पर हम basically जो study करेंगे electron gas को, we'll try to study what happens to this electron gas at T equal to 0 Kelvin, that means at absolute 0. So for this सबसे पहले हम क्या देखेंगे, we know this expression of gas degeneracy factor, and we know that as T tends to 0, D tends to infinity. This we can easily see from this expression. So how we can write this value, 1 upon e raised to power alpha plus x plus 1. हमने जब बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव किया था तो वहां पर हमारे पास nu du क्या आया था, nu du was gu du upon e raised to power alpha plus x plus 1, ठीक है, जहां पर हमने x जो है उसको लेट किया था u अपॉन kt, ठीक है। ये तुम लोग को आई होप याद होना चाहिए व्हेन वी वर डूइंग द फर्मी डिराक गैस। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं अंडर दिस कंडीशन। नाउ e raised to power alpha हमारा क्या है, दिस इज 1 अपॉन d बिकॉज d इज इक्वल टू e raised to power माइनस alpha। x हमारा क्या है, दिस इज u अपॉन kt। तो as t tends to 0, x हमारा क्या होगा, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो गया, e raised to power infinity. Moreover, what we have as t tends to 0, d tends to infinity, तो 1 upon d हमारा क्या हो गया, 1 upon d जो है वो हमारा हो गया 0, ठीक है। तो 0 into infinity हमारा क्या होगा 0, 0 के साथ हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही आएगा, तो हमारा ये फैक्टर क्या हो गया 0। सो दिस इज 1 upon 0 plus 1, 1 upon 0 plus 1 is what, 1. So from here what we have seen that as t tends to 0, d tends to infinity, so 1 upon d जो है it will tend to 0. So we can write 1 upon e raised to power alpha plus x plus 1 as 1. So at low temperatures or at very low temperatures, what we can write to n, हमारा n क्या हो जाएगा अब, n हमारा क्या था, n हमारा था gs into v upon h cube into 2m pi kt raised to power 3 upon 2 into f1 alpha, where f1 alpha is 2 upon root pi integral 0 से infinity x raised to power half upon e raised to power alpha plus x plus 1 into dx। ये हमारा था। मैं एक बार ये दोबारा दिखा देती हूँ ताकि तुम लोगों को पता हो that which equations we are using to solve this value of n. This equation 4.31, this equation n is equal to gs into v upon h cube into 2m pi kt raised to power 3 upon 2 into f1 alpha, where f1 alpha is 2 upon root pi integral 0 से infinity x raised to power half dx upon 1 upon d e raised to power x plus 1. अब हमने क्या देखा, at low temperatures when t tends to 0, d tends to infinity, तो ये जो हमारा denominator है it will become 1. So we can write f1 alpha as 2 upon root pi integral 0 से infinity x raised to power half dx. So we can write n as,
तो n को हम लिख सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। n हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस gs बाय 2, ठीक है। द स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर gs is 2s+1 which is equal to 2। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, दिस 2 into 2 विल बिकम 4। तो ये हमारा हो गया 4v अपॉन रूट पाई, ठीक है। ये h क्यूब हमारा यहाँ आ गया और ये हमारा यहाँ रहा। So now we have to integrate x raised to power half from 0 to infinity. Here one approximation is done. इस चीज का ध्यान रखना है। Here infinity जो है it is replaced by d, capital D, the gas degeneracy factor. Why? देखो हम क्या कह रहे हैं, that as t tends to 0, t tends to infinity, and we are trying to study our system at very low temperatures. So when t tends to 0, d tends to infinity. So हम infinity जो है उसको replace कर सकते हैं by कैपिटल D, क्योंकि D जो है हमारा वो भी इनफाइनाइट है, इट इज ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी, और जो अपर लिमिट है हमारी वो भी इनफाइनाइट है। सो वी कैन make this approximation by replacing the upper limit as D at low temperatures near absolute zero, ठीक है। This is only possible at low temperatures। कौन से low temperatures? Very low temperatures near absolute zero। यहाँ पे लिखा भी है, we have put gs is equal to 2 and we have replaced the upper limit by d at low temperatures near absolute zero as d tends to infinity when t tends to 0. So we can make this approximation and we can replace infinity in the upper limit by capital D, and we can only do this if we are trying to study this system at low temperatures near absolute zero. Only then it can be done. Now what will happen to n now? N will be equal to, this is not h, this is 4, इसको correct कर लो। n is equal to 4v upon root pi, ये as it is रहा 2m pi kt raised to power 3 upon 2 divided by h cube। x raised to power half की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे होगा x raised to power 3 upon 2 divided by 3 upon 2। Put the limits of integration, it will become d raised to power 3 upon 2 divided by 3 upon 2। So now we'll try to solve this equation for d. So what will be our d now? d की यहाँ पावर कितनी थी? 3 upon 2। तो हम यहाँ d लिख रहे हैं, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उनको हम रखेंगे इन दी पावर ऑफ 2 upon 3, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, देखो h क्यूब जो है हमारा, जब हम इसको रखेंगे 2 upon 3 में तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर, ये एज इट इज आया। यहाँ पर 2mkt, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पावर 3 upon 2 है, d की पावर भी 3 upon 2 है, हमें d निकालना है। दैट मीन्स हमें दोनों साइड जो है 2 upon 3 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉट यू कैन से मल्टीप्लाई, इसकी जो पावर है d की पावर 3 upon 2 है ना, तो दोनों साइड्स अगर हम पावर कर दे 2 upon 3 तो हमारे पास d आ जाएगा। So d will be equal to h square upon 2mkt into, अब देखो हमारे पास ये एक पाई यहाँ पर है, ये एक पाई यहाँ पर है, ये 3 upon 2 हमारे पास ऐसे ही है, ये n हमारे पास ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारा ये जो 3 upon 2 है ये इधर जाएगा, 4 जो है नीचे आएगा, तो ये हो गया हमारा 3 upon 8 इन पावर्स ऑफ 2 upon 3। n भी हमारा एज इट इज आ गया 2 upon 3 की पावर में। पाई हमारा क्या आ गया यहाँ पे, पाई अपॉन रूट पाई क्या होगा, रूट पाई, ठीक है। रूट पाई हमारा यहाँ नीचे आ गया, तो ये भी हमारा आ गया पावर ऑफ 2 upon 3 में। और फिर हमारे पास ये बचा v भी हमारा आ गया पावर ऑफ 2 upon 3 में। यहाँ पर देखो पाई जो है हमारा, इट इज हैविंग द पावर 3 upon 2। यहाँ पर जो हमारा पाई है दिस इज हैविंग द पावर ऑफ 1 upon 2। तो 3 upon 2 minus 1 upon 2 will become 1। तो हमारा पाई का फैक्टर आएगा, पाई रूट पाई नहीं आएगा, दिस इज नॉट पाई अपॉन रूट पाई, दिस इज पाई रेज्ड टू पावर 3 upon 2 डिवाइडेड बाय रूट पाई। सो दिस बिकम्स पाई। तो पाई जब हमारा यहाँ नीचे आएगा तो इट विल बी इन द पावर ऑफ 2 upon 3।
अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ हाउ वी कैन राइट डी यूजिंग दिस इक्वेशन। कुछ नहीं करना, रीशफलिंग है और पावर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर डी की पावर 3/2 थी, नाउ वी आर राइटिंग डी। ठीक है, दैट मीन्स हमें सबको जो है इन पावर्स में रखना पड़ेगा 2/3 के। ठीक है, तो एच क्यूब को जब हम 2/3 की पावर में रखेंगे ये एच स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 2m/kT जो है वो भी हमारा 3/2 की पावर में है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दी पावर बाय 2/3, तो ये हो जाएगा 2m/kT। ठीक है, यहाँ पे एक पाई रह गया रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पे रूट पाई रह गया, तो इट बिकम्स पाई। और हमारे पास कौन सी टर्म्स है, n है, ये हमारे पास 3/2 है, 4 है, और यहाँ पे हमारे पास ये v है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3n/8 पाई v, इसकी पावर आ गई 2/3। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो खुद से जब करके देखोगे कॉपी में तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों? अब हम ट्राई करेंगे टू राइट दिस डीजेनरेसी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हम ये जो ब्रैकेट है इसमें m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो mn/v हमारा क्या हो गया, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय रो विच इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो mn/v को हमने रिप्लेस कर दिया बाय रो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बचा, 3ρ/8 पाई। अब ये एक m का फैक्टर और है, इसको हम बाहर ले गए ब्रैकेट से, तो हमारे पास क्या बचा, h²/2kT इंटू m रेज टू पावर 5/2। वाई, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 2/3 है, सो दिस बिकम्स 1 सेकेंड 1 plus 2/3, 1 plus 2/3 becomes 5/3। तो इसको करेक्ट करो, दिस इज नॉट 5/2, दिस इज 5/3। ठीक है, तो D हमारा क्या आ गया, D हमारा आया h²/2m रेज टू पावर 5/3 इंटू KT इंटू 3ρ/8 पाई रेज टू पावर 2/3। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, या थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो जो मैं बता रही हूँ उनको साथ के साथ करेक्ट करते जाना। ना अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डीजेनरेसी फैक्टर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T। H की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। M की वैल्यू हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रो की वैल्यू हमें पता है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। K की वैल्यू हमें पता है द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14। So if I'll substitute all the values of H, M, K, pi and rho here, I can write D in terms of this temperature T. So this equation is representing the degeneracy of electron gas at low temperature near absolute zero. हमने ये degeneracy factor जो है निकाला था by considering the condition of low temperature near absolute zero. तभी हम n की एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट इंफिनिटी को बाय d। ठीक है, so what happens at low temperatures near absolute zero, d comes out to be this in terms of temperature T। तो यहाँ से we can see that जो हमारा d है it is inversely proportional to temperature। तो टेम्परेचर जितना कम होगा d की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और ये हमने पहले भी देखा था, d जो है हमारा इट अकाउंट्स फॉर द डीजेनरेसी ऑफ द गैस। D हमारा जितना ज्यादा होगा हमारी गैस जो है उतनी ही ज्यादा डीजेनरेट होगी। सो एट वेरी लो टेम्परेचर्स नियर एब्सोल्यूट जीरो D की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। सो एट लो टेम्परेचर्स जो हमारी गैस है इट विल बी स्ट्रांगली डीजेनरेट। ठीक है, एंड दिस वी कैन ऑल्सो क्लियरली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो it shows clearly that for electron gas the classical statistics is not valid। तो यहाँ पर हमने देखा जब हम इलेक्ट्रॉन गैस को स्टडी कर रहे हैं, in that case we cannot study the different properties of the metals by simply applying the Maxwell-Boltzmann statistics।
वाई? बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस है इट इज अ डीजेनरेट गैस एट लो टेम्परेचर्स। ये डीजेनरेसी शो करती है, ये डेविएशन शो करती है फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर एट लो टेम्परेचर्स। तो इसको जो है हम स्टडी नहीं कर सकते बाय सिंपली अप्लाइंग द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर fermions, so they can be explained with the help of Fermi-Dirac statistics। और यहाँ पर हमने देखा at temperatures of the order of 10 raised to power 5 हमारा D जो है it will tend to infinity। Therefore at low temperatures and other ordinary working temperatures it is necessary to use Fermi-Dirac statistics for studying electron gas in matters। अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है फर्मी टेम्परेचर से, उस केस में जो हमारा D है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उस केस में जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस है इट इज नाउ बिहेविंग लाइक द classical gas only, but we cannot use classical statistics when we want to study the electron gas at temperatures that are very low than Fermi temperature or near to the Fermi temperature. At very low temperatures near absolute zero, in that case our electron gas जो है it becomes strongly degenerate। हमने यहाँ पे already देखा, हमने Fermi temperature भी निकाला which is 10 raised to power 5 Kelvin for the electron gas। तो अगर मैं T को बहुत कम लूँ Fermi temperature से, उस केस में जो मेरी इलेक्ट्रॉन गैस है इट बिकम्स स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट। ये हमने यहाँ पर देखा। तो अब तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि पहले जब इलेक्ट्रॉन गैस को स्टडी करने की कोशिश करी गई बाय अप्लाइंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें देखा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको तो ये एक्सप्लेन कर पाया अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट लाइक सम प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, जैसे सर्टेन केसेस में ये बिल्कुल भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया द बिहेवियर ऑफ मेटल्स और यू कैन से द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसलिए बाद में ये चीज बोली गई इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे दे आर फर्मी पार्टिकल्स, तो उनको स्टडी करने के लिए वी कैन नॉट अप्लाई द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, वी शुड अप्लाई फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फिर उसके बाद देखा गया कि हाउ वी कैन find the Fermi energy at 0 Kelvin and the Fermi temperature for the electron gas। ठीक है, और वो हमने क्या देखा, वो हमारा आया फर्मी टेम्परेचर हमारा कितना आया, इट केम आउट टू बी 10 raised to power 5 Kelvin। और हमें पता है अगर हमारा टेम्परेचर जो है फर्मी टेम्परेचर से कम है, इन दैट केस आवर गैस जो है इट इज डीजेनरेट। ठीक है, और if it is very less than TF, in that case our gas is strongly degenerate। If it is slightly greater than TF, T is greater than TF or nearly equal to TF, or you can say that at the temperatures nearly equal to Fermi temperatures our gas is weakly degenerate। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है फर्मी टेम्परेचर से तो हमारी गैस स्ट्रांगली डिजेनरेट होती है। तो अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इन दैट केस हमारी गैस जो है डिजेनरेट नहीं होगी, वो नॉन डिजेनरेट रहेगी। पर अगर हमारी गैस का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, उस केस में हम जो है इस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय सिंपली अप्लाइंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। हाई टेम्परेचर्स पे तो गैस बिकम्स नॉन डिजेनरेट, बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स आवर गैस जो है इट बिकम्स स्ट्रांगली डिजेनरेट। सो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये हमने अभी देखा। नाउ व्हाट वील डू नेक्स्ट, we'll try to now find the energy of the electron gas at 0 Kelvin, the pressure at 0 Kelvin, and the average speed of electron at 0 Kelvin. So first we'll study the energy of electron gas at 0 Kelvin. That means the 0 point energy of electron gas. ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, at 0 Kelvin हमारा NU/DU क्या होता है? NU/DU is equal to FU into GU/DU, ये सबको पता है। ठीक है, where FU is the Fermi Dirac distribution function। NU हमारा कितना होता है? This is equal to FU into GU/DU। ठीक है, where FU represents the Fermi Dirac distribution function which is equal to 1 upon e raised to power u minus uf upon kt plus 1। ठीक है, we are talking about the temperature 0 Kelvin और हमें पता है at T equal to 0 Kelvin
जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं अप टू द फर्मी लेवल दे आर फिल्ड एंड अबव द फर्मी लेवल ऑल द एनर्जी लेवल्स आर वेकेंट। ठीक है, सो एट टी इक्वल टू 0 केल्विन जो हमारे पार्टिकल्स हैं दे विल ऑक्यूपाई द एनर्जी स्टेट्स फ्रॉम 0 टू यूएफ। यूएफ इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो। यूएफ जीरो जो है हमारा दैट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो। तो हमें पता है जीरो से यूएफ तक हमारे जो सारे एनर्जी लेवल्स हैं दे आर फिल्ड एंड अबव यूएफ or above the Fermi level all the energy levels are vacant and this is the case at absolute zero only। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, पार्टिकल्स जो है हमारे कहां से कहां तक प्रेजेंट है, जब हमारी एनर्जी जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू यूएफ। इसी रीजन में जो है पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट हैं, इसके ऊपर वाले रीजन में नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारा Fu क्या होगा अंडर दिस कंडीशन, एट T इक्वल टू 0 केल्विन Fu जो है हमारा इट बिकम्स 1। वाई, बिकॉज Fu हमारा होता है 1 अपॉन e रेज टू पावर u माइनस uf अपॉन kt प्लस 1 एंड e रेज टू पावर u माइनस uf अपॉन kt क्या होगा, एनर्जी जो है हमारी लेस देन uf है सो इट इज नेगेटिव, तो e रेज टू पावर some negative term divided by kt where t is 0. So this is e raised to power minus infinity which is 0. So we have Fermi-Dirac distribution function as 1 upon 0 plus 1 which is 1. तो fu हमारा 1 हो गया, nu du हमारा हो गया fu into gu du where fu is 1. So nu du will become gu du. ठीक है, so now we'll use this expression nu du is equal to gu du from equation number 4.40। मैं ये इक्वेशन दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज द इक्वेशन 4.40। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं एट एब्सोल्यूट जीरो। t हमारा 0 है तो ये वाली टर्म जो है हमारी हो गई e raised to power minus infinity which is 0. So 0 plus 1 becomes 1. So nu du जो है it will simply be given by this expression. So we are directly using this expression. अगर एग्जाम में तुम्हें ये करना है then you have to remember this expression. So now with the help of this expression we will now try to find the energy at 0 Kelvin. कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग दी स्टेट्स फ्रॉम 0 टू यूएफ ओनली एट 0 केल्विन। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो है हर एक स्टेट पर जो है पार्टिकल प्रेजेंट है, 0 से यूएफ तक सारी स्टेट्स फिल्ड हैं एट एब्सोल्यूट 0 एंड अबव यूएफ ऑल दी स्टेट्स आर वेकेंट। तो अगर मैं एक पार्टिकल कंसीडर करती हूँ या एक इलेक्ट्रॉन, लेट्स से उस एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी u है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने हैं इन द रेंज u एंड u प्लस du हमारे इतने हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी होगी इन द रेंज u एंड u प्लस du, the total number of particles into the energy of a single particle u into nu du. What will be the total energy from 0 to uf? total energy हमारी क्या होगी, u into nu du को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे from the lower limit to the upper limit, lower limit क्या होगी 0 corresponding to the ground state, upper limit क्या होगी uf0 corresponding to the Fermi level, corresponding to the filled and corresponding to the highest filled energy level, that means the Fermi level. Fermi level हमारा होता क्या है, this is representing the highest filled energy level at absolute zero. तो एनर्जी हमारी कहां से कहां तक वेरी करेगी 0 से uf तक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। u नॉट हमारा कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ nu du ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास u कहाँ पर है, इसके अंदर है, यहाँ ऑलरेडी एक u यहाँ पर है, तो ये हो गया u रेज़्ड टू पावर 3/2। तो बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं उनको हमने बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन में हमने रखा u रेज़्ड टू पावर 3/2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हमारा क्या आएगा u रेज़्ड टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील पुट
द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन गैस की 3/5 इंटू n इंटू UF0। अगर तुम लोगों को याद हो, यही सेम एक्सप्रेशन हमारी आई थी जब हम स्टडी कर रहे थे डीजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। तो वहां पर हमने देखा था एट एब्सोल्यूट जीरो फॉर अ फर्मी गैस द 0 पॉइंट एनर्जी comes out to be 3/5 into NuF0, which was given by the equation number 4.50। ठीक है, 4.50 हमारी इक्वेशन आई थी जिसमें हमारी 0 पॉइंट एनर्जी आई थी 3/5 इंटू n इंटू UF0 फॉर अ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। वही हमारी यहाँ पर आई। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन गैस जो है दिस इज नथिंग बट अ फर्मी गैस। Next, we are now trying to find the 0 point pressure of the electron gas. That means the pressure of the electron gas at 0 Kelvin. Simple है, हमारा pressure का formula है 2/3 into U upon V. 0 point pressure हो जाएगा P naught is equal to 2/3 into U naught upon V. Substitute U naught over here, 2/3 into 3/5 into n into UF0, or we can write 2n/5 into UF0 upon V. ये 3 हमारे जो है cancel out हो जाएंगे। So 2/5 into, now n/v को हमने as it is लिखा और UF0 जो है उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी इलेक्ट्रॉन गैस के डेरिवेशन में, ये इक्वेशन here we have substituted GS as 2। तो हमारे पास आ जाएगी द 0 पॉइंट प्रेशर। UF0 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी h²/2m into 3n/4 pi GS into V raised to power 2/3, substitute GS as 2। So here we have 8 का फैक्टर। So हमारे पास P naught कितना आ गया 2/5 into n/v into h²/2m into 3n/8 pi V raised to power 2/3। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 raised to power 2/3 है, it can be written as 4। 8 raised to power 2/3 को I can write as 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 हमारा 8 होता है ना, 2 raised to power 3 और इसकी पावर कितनी है 2/3। तो मेरे पास ये आ गया 2 square which is nothing but 4। So I can take 8 raised to power 2/3 out of this and we can multiply outside by 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, it will become P naught, the pressure, this will simply be equal to 1/20 into n/v into h²/m into 3n/8 into 3n/pi v raised to power 2/3। ठीक है, ये 2 हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया। 8 raised to power 2/3 हमारा 4 होता है, 5 into 4 हमारा 20 हो गया। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमने एज इट इज लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है if I try to write this P naught in terms of rho and if I'll try to solve this value of P naught, तो मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं एटॉमिक वेट जो है 100 ले लूं, डेंसिटी जो है 10 कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास P naught आता है 10⁵ एटमॉस्फेयर, दैट इज एट नॉर्मल टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस कम्स आउट टू बी सफिशिएंटली हाई विच इज 10⁵ टेम्परेचर। ठीक है, ये इन्होंने जस्ट एज एन एग्जांपल कंसीडर किया है कि अगर मैं मेटल का एटॉमिक वेट इतना ले लूं, डेंसिटी जो है इतनी ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास जो P naught आएगा इट कम्स आउट टू बी 10⁵ एटमॉस्फेयर विच इज वेरी हाई। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, वी हैव ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर द 0 पॉइंट एनर्जी एंड द 0 पॉइंट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, ये हमारा इतना आया, ये हमारा इतना आया, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, we'll now try to find the average speed of electron gas at 0 Kelvin। स्पीड निकालनी है, so we'll write energy in terms of speed। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, U is equal to ½ mv स्क्वायर। तो what will be du now, ये गलत लिखा हुआ है, du हमारा होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे
ये हमारा होगा mv इंटू dv, ठीक है। सो du इज mv इंटू dv, और यहाँ से हमारे पास u रेस्ट टू पावर हाफ क्या आ गया, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये हम आगे यूज करेंगे। u रेस्ट टू पावर हाफ हमारा कितना होगा, 1/√2, और यू कैन से 1/2 रेस्ट टू पावर हाफ इंटू m रेस्ट टू पावर हाफ इंटू v। आगे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे to find the average speed of electron at 0 Kelvin. We are using the energy as the kinetic energy equal to half mv square. Particles जो है हमारे, जो electrons हैं, they are kind of moving freely inside the metal. They are not completely free, but they are partially free. They are moving freely. So for a free particle, the potential energy is constant or zero. So the total energy can simply be written as the kinetic energy of electron. So U is half mv square. So du becomes mv dv. ठीक है. Now what is UF raised to power minus 3/2 at absolute zero? This is equal to half mvf square रेज टू पावर माइनस 3/2। ये हमारे पास कैसे आया, देखो जब हम UF लिख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो अब हमारा, जैसे हमने UF जीरो को लिखा था इक्वल टू K इंटू TF, वहां TF हमारा था फर्मी टेम्परेचर। अब हमने UF जीरो को, ये एनर्जी है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ V की जगह हमने VF ले लिया, तो VF हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की क्या स्पीड होगी जब हमारी एनर्जी जो है वो इक्वल टू फर्मी एनर्जी होगी, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर फर्मी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द VF which is representing the speed of electron at Fermi energy. UF रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 क्यों लिखा है, क्योंकि आगे हम इसको इसी फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 1/2 रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 इंटू m रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 इंटू VF का क्यूब, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 का फैक्टर है। अब हमारा NU/DU क्या था, ये हमारी एक्सप्रेशन थी NU/DU की, इसको अब हम यूज करेंगे। तो NU/DU और DNU हमारा क्या है, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे T नहीं है, इसको ब्रैकेट में रखो, दिस इज U माइनस UF जीरो, यहाँ एक और ब्रैकेट आएगा, इसको बंद करो, डिवाइडेड बाय KT। यहाँ पे UF रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 को लिखो इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी एनर्जी। तो ये हमारा आ गया 3/2 इंटू n को हमने एज इट इज लिखा, इसको हमने लिख लिया 1/2 रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 इंटू m रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 इंटू, ये U नहीं है, दिस इज V, VF रेस्ट टू पावर माइनस 3/2 at absolute zero into U raised to power half को I can write as 1/2 raised to power half m raised to power half into V, ये रहा, ठीक है। और du को I can write as mv dv. So now I have, so now what is this representing? This is representing, dnu is representing the number of particles lying in the energy range U and U plus du. Now we have written this in terms of the velocity of the electron or the speed of the electron V. Now what will be the average speed? Let's say the average speed is denoted by V bar, और उसका formula क्या हो जाएगा, that will be integral 0 से, this is not U, this is V, integral 0 से VF V into NV dV upon N. Substitute the value of NV dV हमारा क्या है, this is nothing but DNV, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या हो जाएगा 3N VF रेज टू पावर माइनस 3, ये हमारा एज इट इज हो गया, इनटू यहाँ पर भी एक V का फैक्टर है V स्क्वायर, यहाँ पे भी एक V का फैक्टर है, तो हमारे पास ये हो गया V क्यूब, ठीक है। और ये N हमारा एज इट इज यहाँ पर आया, तो N हमारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, and we'll get 3 into VF raised to power minus 3, V cube का इंटीग्रेशन क्या होगा, V4/4, put the limits of integration, तो हमारे पास ये क्या आ गया 3/4 VF जीरो। VF जीरो हमारा क्या है, VF zero is representing the speed of electron at the Fermi energy. This is we are talking about at absolute zero.
सो V बार हमारा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन in terms of speed of electron at Fermi energy. ठीक है, so thus we find that as a consequence of Fermi-Dirac statistics, the free electrons in metals can never be brought to rest. They possess high speeds even at 0 Kelvin. तो यहाँ हमने क्या देखा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं which are moving freely inside the metal, जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन ले आते हैं, इतना कम कर देते हैं टेम्परेचर को, तब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेस्ट पे नहीं होते, तब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे पोजेस सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी होगी तभी तो वो मूव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर not at rest even at absolute zero. They are still possessing some energy. They are still having a very large average speed even at absolute zero. तो ये चीज हमने यहाँ कंक्लूड की कि V बार जो है हमारा वो जीरो नहीं है, it is non-zero. That means the free electrons inside the matters, they are not at rest even at absolute zero. Now next we will find the specific heat. Cv, that is equal to del U upon del T at constant V. V is representing the volume here. ठीक है, now this Cv is the electronic contribution to the specific heat, or you can say that the specific heat of metals due to the free electrons present inside this metal. ठीक है, so here we have obtained, or you can say that now we are trying to obtain this specific heat using the Fermi-Dirac statistics. यहाँ पे हमने जितना भी use किया है derivation में, we were using the Fermi-Dirac statistics only. So we can say that this specific heat जो है, this is representing the specific heat of metals due to free electrons present inside the metals in accordance with the Fermi-Dirac statistics. ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे। क्यों, ये अगर तुमको याद हो हमने ये वैल्यू डिराइव करी थी when we were doing the degeneracy of Fermi gas. This expression given by equation 4.64. ये एक्सप्रेशन हमारी क्या थी, ये एक्सप्रेशन हमने निकाली थी which was representing the energy at temperatures near absolute zero, or you can say that at temperatures above absolute zero but T is very less than TF. उस केस में हमने निकाली थी the expression of this energy of the Fermi gas. ठीक है, वही एक्सप्रेशन जो है अब हम यहाँ पर यूज करेंगे in the electron gas of matters. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी एक्सप्रेशन U को यूज करेंगे जो हमने पहले निकाली थी। अगर तुम लोगों को याद हो पेज नंबर 132 where we were studying the case of the temperatures above absolute zero but very less than the Fermi temperature. जो हमारा टेम्परेचर था वो जीरो नहीं था, नॉन जीरो था, बट इट वाज very less than Fermi temperature. उस केस में we obtained the expression for the energy of this strongly degenerate Fermi gas. Strongly degenerate क्यों है, because temperature is very less than TF. ठीक है, तो उस एनर्जी की एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। ये तो 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। व्हाट we'll get 1/2 into n into k into pi square into kt upon UF0. So this is the specific heat at low temperatures above absolute zero. यहाँ पर हमने U की ये एक्सप्रेशन क्यों लिखी है, because here we are not trying to find the electronic contribution to the specific heat at low temperatures above absolute zero. टेम्परेचर जो है इट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन बट इट इज लो, इट इज very लेस देन फर्मी टेम्परेचर। उसमें एनर्जी की एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है। T का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 into T।
तो यहाँ से ये जो 5 है मेरा वो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ मेरा, ठीक है। ऊपर मेरे पास 2 आया, 2 यहाँ से कैंसिल आउट होगा 1/12 से, इट विल बिकम 6। 3/6 को आई कैन राइट एज 1/2। ये मेरा एज इट इज आ गया, ये n मेरा एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा UF0 है, यहाँ डिनोमिनेटर में UF0 का स्क्वायर है, तो ये UF0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, k का स्क्वायर है, तो एक k मेरा ये रहा, एक k मेरा ये रहा, पाई का स्क्वायर है वो मेरा एज इट इज रहा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t था, 2 को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, t मेरा यहाँ आ गया। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, and this proportionality constant जो है this is lambda which is equal to 1/2 into n into k square pi square upon UF0. Lambda is a constant quantity which is independent of temperature, and this is equal to n into k square upon pi square divided by 2 into UF0. So from this we can say that जो हमारी specific heat है metals की that is directly proportional to the absolute temperature, and as T tends to 0, it tends to 0. It vanishes at absolute 0. तो यहाँ पर हमने निकाला the specific heat at low temperatures above absolute 0. तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं in which electrons are moving freely, then we should apply the Fermi-Dirac statistics instead of applying the Maxwell-Boltzmann statistics, because these electrons, they are Fermi particles, they have half integral spin. फिर उसके बाद हमने ट्राई करा to find the Fermi energy of this electron gas at absolute 0. उसकी help से we found the expression of the Fermi temperature for this electron gas, and it came out to be 10⁵ Kelvin. So from this we can say that जो हमारी electron gas है below this Fermi temperature 10⁵ Kelvin becomes degenerate. And we already know when temperature is very less than Fermi temperature, in that case our gas is strongly degenerate, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कंसीडर किया the case of very low temperatures at absolute, we considered the case of very low temperatures near absolute 0, ठीक है, very low temperatures near absolute 0, और वहां से हमने ट्राई किया to find the value of gas degeneracy factor capital D, और हमने वहां से देखा at low temperatures near absolute 0 जो हमारी इलेक्ट्रॉन गैस है it becomes strongly degenerate. फिर उसके बाद हमने ट्राई किया to find the energy of the electron gas at 0 Kelvin, the pressure of the electron gas at 0 Kelvin, the average speed of the electron gas at 0 Kelvin. उसके बाद फिर हमने निकाला the electronic contribution to the specific heat CV at low temperatures above absolute 0 or at low temperatures near absolute 0. तो वहां पर हमने डायरेक्टली यूज करी थी एक्सप्रेशन एनर्जी की जो हमने पहले निकाली थी, which was representing the energy of the Fermi gas at low temperatures near absolute 0. सेम एक्सप्रेशन हमने यहाँ यूज करी और हमने देखा जो हमारा specific heat है metals की because of the free electrons, that means the electronic contribution of the specific heat जो है this is temperature dependent, it is directly proportional to the absolute 0 and it vanishes at absolute 0, that means at T tends to 0 CV tends to 0. अब हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है which is the specific heat anomaly of metals and its solution. This we'll see in the next class.